Good morning, all the students. How are you? Are you fine? Very good. I am also fine. Today we will discuss chapter number 10, mention and measurements of distance. उसमें हमने फर्स्ट वीडियो में एक्टिविटी 2 तक देख लिया था, है ना। अब हम एक्टिविटी 3 पे आएंगे। 10.3 सम मेजरमेंट्स। एक्टिविटी 1, वर्क इन ग्रुप्स एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी 1 by 1 using for foot as unit of length measures the length and breadth of a classroom. It is possible that measuring this your my found part remains to be measures as smaller than your foot. Use a staring measure a length of part your foot as did before. Record your observation in table 10.1. तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है कि आप अपने बेंच या आपके घर पे जो बेड हो उस दोनों का यूज़ करके आपको क्या करना है, माप लेना है। तो आप आपके हाथों से मापोगे, राइट, या फुट या पैरों से भी माप सकते हो। उसके अलावा पूरा हमें अंदाज़ा नहीं आएगा कि कौन सा बड़ा वाला है। घर पे बेड है वो बड़ा वाला है कि बेंच बड़ी वाली है। तो आप क्या करोगे, उसके लिए रस्सी लोगे जो उसको मापोगे और जो माप आएगा वो उस टेबल में लिखोगे। अंडरस्टैंड। आपको लेंथ ऑफ क्लासरूम एंड विड्थ ऑफ क्लासरूम में लिखना है। एक्टिविटी 2, वर्क इन ग्रुप्स एंड इच यू सी यूज योर हैंड्स अप एंड यूनिट मेजर द विड्थ एंड टेबल और डेस्क इन द क्लासरूम। आपको क्या करना है एक्टिविटी 2 में, हैंड शेप से आपको क्या करना है, माप लेना है। अंडरस्टैंड। Here too, many find that need staring length equal to your hand shape and then factors of this staring length make the measurement. Record the observation in table 2. We see that measurement means that comparison of a noun quantity with some noun quantity. This no fixed quantity is called unit. The result of measurement is expressed two parts. One part is the number, that other part is unit the measurement. For example, if in activity 1 the length of the room is found to be 12 lengths, your foot, then 12th is the number and foot length is a unit select for the measurement. यहाँ स्टूडेंट्स ये बताया गया है कि कोई भी जगह कोई भी चीज़ का आप माप लेते हो तो वो बड़े जंथे में होता है, उसके लिए आप लेते हो ना। यस, यहाँ आपको एग्जांपल कोई भी माप हो दो तरह के होता है, एक नंबर में होता है और जो एक हमें जत्था मिला है उसको हम माप लेंगे तो उसका भी नंबर होगा। यानी कोई हमें कोई भी बात करे, रूम की बात करे तो उसकी 12th लंबाई बताएगी है, तो आप जिसको माप लेंगे फुट लेंथ लेंगे तो उसके भी क्या होंगे, 12th नंबर। Now study all the measurements record to table 10.1 and 10.2 are all the measurement for the rooms using everybody foot equal. Are everybody's measurement by hand shape of the width and table equal? Perhaps and result could not different the length your hand shape and that your friend may need not be some. Similarly, length of the foot might be slightly different for the all students. Therefore, when you are measurement using your hand shape or length of foot as unit, others they are or not be allowed to understand how big the equal to length unless then how the length of your hand shape or foot. यहाँ ये बताया गया है कि आप यानी आपके दो आप और आपके फ्रेंड हो, दोनों लेंथ के माप ले रहे हो तो दोनों के लेंथ के माप एक सरखे होंगे, नहीं हो सकते, क्योंकि हम हाथ की हैंड शेप की जो लंबाई मापते हैं, जो लंबाई लेते हैं उसमें भी डिफरेंट आएगा, क्योंकि हमारे से जो अगर हमारा फ्रेंड बड़ा होगा तो उसकी लेंथ कम आएगी, जब हमारे हाथ हैंड्स छोटे हैं तो उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, दिखाई देगी। तो यहाँ कोई भी माप लेना हैंड्स या फुट से तो कोई कंप्लीटली परफेक्ट माप मिलता नहीं है। We see therefore that some standard units and measurements are needed that do not change for person to person. यहाँ ये बताया गया है कोई मेजरमेंट माप है वो कोई भी सब माप सब के लिए एक ही सरखा है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। बट माप लेने का जो तरीका है वो सबका अलग अलग होता है।
नेक्स्ट एक्टिविटी है 10.4 स्टैंडर्ड यूनिट्स measurements. In accident times, the length or foot, the width of finger, and distance of the step your commonly use the different units measurements. The people of the Hindus village civilization must have used very good measurements of length because we see evidence in एक्सिविजेशन इज़ परफेक्टली गवर्नमेंटली काउंस्ट्रिंस. तो यहाँ हमें जो लोथल में कोई प्राचीन जो है लंबाई मिली है, जो सांस्कृतिक लोगों की हड़प्पा संस्कृति की जो माप मिले हैं वो परफेक्टली मिले. तो लगता है कि उनकी जो लंबाई का माप थे वो परफेक्ट लेते थे. Covet as the length for the elbow to the fingertips. Use the accidentally amplitude and also expect your unit length other parts of the word. People also use the foot as unit of length different parts of the word. The length of the foot use the word silently for the reason. सब लंबाई है वो डिफरेंट तरीके से मापते हैं. कोई पैर से मापता है, कोई हेड से मापता है, कोई एल्बो से मापता है. राइट. पीपल मेजर्ड यार्ड ऑफ क्लॉथ बाय डिस्टेंस बिटवीन द एंड टू आउटस्टैंड आर्म देयर चीन. द रोमन्स मेजर्ड विथ देयर पेस. हम जब कापड़ की दुकान पे जाते हैं तो वो किससे मापते हैं? पट्टी से. उसी तरह अगर माली हो तो फूल बेच रहा हो तो वो माला अपने एल्बो से माप करके बनाएगा. इन एक्सीडेंटली इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट्स यूज द वेरी अंगलू फिंगर और द मुट्ठी फिस्ट. इवन टुडे वी कैन सी फ्लोर seller using their Brahman as unit length for the grassland in many towns of India. Many such body parts continue in this use and length when conversation. However, everybody body parts could not silently different size the must have caused confusion and measurements. In 1719 the French credit stand unit the measurement called the metric system. For the snake uniformly and scientifically all over the world, and experts said the standard used the measurement. The system units and use now has the international system of unit SI units. The SI's length is meter. Meter is equal to sum is figure 10.6 also show in this 15 cm scale in your geometry box. यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि हमें कोई भी माप लेना हो तो हम किस तरह लेंगे. कोई भी चीज़ का माप कोई भी पद्धति से लेंगे. राइट. तो वो सब उसको मानव प्रणाली का उपयोग करते हैं. राइट. जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय एकम प्रणाली का एकम क्या है? एसआई यूनिट. एसआई यूनिट यानी एकम मीटर होता है. क्या मीटर होता है? मीटर में होता है. अगर हमें हमारी कंपास बुक में पड़ी पेंसिल का माप लेना है तो हम किससे लेंगे? फुट पट्टी से. अंडरस्टैंड स्टूडेंट. each meter is divided into 100 equal divides to called centimeter, or each other centimeter has been equal to divides to called millimeter. Thus यहाँ हमें एग्जाम्पल दिया गया है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर 1 सेमी बराबर इक्वल टू 10 millimeter. For measuring large distance, meter is not convenient unit. We define large unit and length is called kilometer. आपको यह क्वेश्चन होगा कि अब हमें मीटर थोड़े कम तक आएगा क्योंकि कापड़ तक आएगा, बट हमें कोई भी माप लेना है यानी अहमदाबाद से मुंबई जाना है तो उसका माप हम कैसे लेंगे? मीटर में लेंगे? नो, उसका क्या लेंगे? किलोमीटर में लेंगे. अंडरस्टैंड. Now we can respect all our measurement activities using standard scale and measurement SI ekam units. Before we do know that we need and I know correct by to measuring length and distance. Correctly measurement of the length. In our daily life use the various types of measuring device. We use the meter scale. तो यहाँ हमें एक एक्टिविटी दी गई है 10.5 करेक्ट मेजरमेंट के बारे में बताया गया है.
तो हम करेक्टली माप किस तरह से लेते हैं इसके बारे में यहाँ कहा गया है। मैं आपको इस से समझा देती हूँ, ये आपको रीड करने का है। कोई भी हम माप लेते हैं तो उसकी स्केल लेते हैं, तो स्केल में कई स्केल ऐसी होती है कि जिसमें जो जीरो होता है वो निकल गया होता है या दिखाई नहीं देता हो, तो उससे हम माप नहीं लेंगे, ठीक है। जीरो से नहीं लेंगे, बट कहाँ से लेंगे, 1 से लेंगे। 1 से रख देंगे। अगर 1 से लेके 14 तक आता है तो हम क्या कर देंगे, हमें परफेक्ट माप करनी है। 14 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा, 13। तो उसका पूरा कंप्लीट माप क्या हो गया, 13। तो हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 1 हमारा जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हमने 1 से जीरो से नहीं लिया है। जीरो हमारा जो दिखाई नहीं दिया है, इसलिए हमने 1 से लिया है। और 1 सेंटीमीटर से लेके 14 सेंटीमीटर तक आए तो हम क्या करेंगे, 14 माइनस 1 ताकि 30 आ जाए, तो उसका परफेक्ट माप मिल सकता है। अंडरस्टैंड, यहाँ यही एग्जाम्पल दिया गया है और आप अच्छे से देख लेना। अंडरस्टैंड। सेकंड एक्टिविटी में आपको दिया गया है कि कोई भी यहाँ 3 बॉय दिए गए हैं, आप पास में देख सकते हो। 3 बॉयज़ को एक चीज़ देखने के लिए कहा है, बट तीनों ए बी और सी जो बॉयज़ हैं वो डिफरेंट जगह पे खड़े रह के देख रहे हैं, तो सबको अलग अलग दिख रहा है। जो बीच में खड़ा है उसको ही परफेक्ट मार्क दिख रहा है 8, बाकी सबको 7th and 9th दिख रहे हैं। तो माप लेना भी परफेक्टली जानना पड़ता है। तो यहाँ आपको ये पैराग्राफ आपको रीड करना है। आज के आपका होमवर्क है पैराग्राफ 98, 99 एंड 100 पैराग्राफ, तीनों पैराग्राफ आपको रीड करने के हैं। अंडरस्टैंड। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। और एक्टिविटी 3 भी आपको कंप्लीट करना है, मेजरमेंट ऑफ हाइजेट, वो मूवमेंट द हाइजेट इन हैंड हेल्प्स एंड हाइजेट कैन बी। तो यहाँ भी आपको ये कंप्लीट करने की है। अब हम जब नेक्स्ट मिलेंगे तब यूनिट 10 एक्टिविटी 10.16 यानी मेजरमेंटिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन के बारे में पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड। ओके, बाय एंड टेक केयर।